So in this video we will discuss toppers mindset to crack any competitive exam. As you all are aware that to crack any competitive examination you have to carry a certain kind of mindset so that on an exam day you feel confident and you feel confident that you will be able to crack that exam. So I have cleared SSC Channel 2024 and I have secured a very good rank in that examination. And from that experience, I have learned certain things which I was not well aware of beforehand. But after doing that thing, in hindsight, I realized that thing कि ये चीज़ें भी ऐसे काम करती हैं. And in this video I will definitely try to inculcate some kind of way or tell you that little things which have helped me in my competitive examination journey and which can also give you a new perspective to look at this examination. So let us start this video. So as you can see this triangle in which I have made three circles and draw a straight line which is a perpendicular. So actually I was studying maths, and in this in maths I was studying geometry. So I was looking at this topic in which it was about in circle and in radius and all that things. So उसमें हमने ये पढ़ा कि जब भी हम ऐसे सर्कल बनाते हैं एक ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये इन सर्कल हो जाता है, ये इन सर्कल है, ठीक है, तो जो इसके और ये जो बीच का डिफरेंस होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे सर्कल्स आ सकते हैं. एंड टू रीच दिस पॉइंट हम सर्कल्स बनाते रहे बट वी विल नेवर बी एबल टू अचीव दिस थिंग विच इज़ एपेक्स, विच इज़ पिनेकल, विच इज़ अ समिट. ठीक है, जो हमारा विच वी कैन सिग्निफाई एज अ पॉइंट वेयर वी विल अचीव परफेक्शन. सो basically competitive examination is a road towards perfection. We are trying our best to become the best version of ourselves, to get the best marks in the examination so that we can get the best job from any competitive examination from which we are looking for job, for whatever post we are looking. So in this journey of achieving perfection, we are tending to improve ourselves every day. And I think the day you understand this one thing, that our goal is to become the best, not second, not third, the best means achieve perfection. अब होता क्या है, when two players of any sport who are competing on international level, they are one of the best athletes on this planet, and suppose it is the final of badminton match and two players are fighting for that championship, for that trophy, which will then declare that that person who have achieved that trophy is the best player in the world. ठीक है, तो वो चीज़ के लिए क्या होता है कि both of them are so close to perfection but none of them are perfect. एंड दैट इज़ द होल थिंग कि दैट डे जो भी प्लेयर होगा वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा, दैट डे ही विल विन द गेम. एंड वी डू नॉट नो द अदर्स प्लेयर्स स्ट्रेंथ्स, वी डू नॉट नो कि उसकी उस दिन क्या गेम होने वाली है, किस लेवल की वो गेम खेलने वाला है. सो फॉर आवर सेल्स, इफ़ वी हैव टू कीप इट सेफ एंड इफ़ वी हैव टू एंश्योर दैट वी विन दैट गेम, हमें उस परफेक्शन तक पहुंचना है जो कि 99.9999 मतलब जो जाती है, मतलब हमें कहीं पर भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं छोड़ना है. हमें अपनी साइड से अपना बेस्ट वर्जन अनलीश करना है और उसको भी लिमिट्स पुश करके हमें यहाँ पहुँचने की कोशिश करनी है. ऑब्वियसली आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी सर्कल बना लो, यहाँ पर जाने में आप जितने मर्जी सर्कल बना लो, छोटा सा यहाँ पर एक गैप रह गई, थोड़ा सा गैप रह गई जो कि आपका परफेक्शन का जो डिफरेंस है वो बताएगा. और जो ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट, वी आर नॉट मेंट टू बी परफेक्ट, बट ह्यूमंस आर मेड इन दिस वे दैट वी कैन अचीव, मतलब वी कैन नॉट अचीव बट वी कैन मूव टूवर्ड्स परफेक्शन. वी कैन बी जस्ट एट द प्लेस वेयर वी जस्ट फॉल टू दैट परफेक्ट स्पॉट. एंड इन दिस video I am trying to explain you that thing
कि अभी शायद आपको अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिख रही होंगी, अपनी एंग्जाइटी वगैरह, आपको ना अभी बाहरी नॉइस इतनी ज़्यादा आपकी हो चुकी है, आपके सोसाइटी ने इस तरीके से कंडीशनिंग कर दी है कि यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आप इस एग्ज़ाम को इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको अपना बेस्ट वर्जन अनलीश करना है, आपको इस एग्ज़ाम में बेस्ट पोस्ट चाहिए। यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम फॉर द रीज़न कि आपको एक जॉब मिल जाए और आप थोड़ा सा सेटल हो जाए लाइफ में। एंड मेरा भी यही रीज़न था, बट जब मैं पढ़ता गया इस जर्नी के दौरान ही मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। और पेपर देने आने के बाद इतने सारे पेपर, ऑब्वियसली मैं बहुत फेल हुआ हूँ, और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी मैं परफेक्ट हूँ, वो परफेक्शन कभी आ नहीं सकती, और मैं तो परफेक्शन से भी बहुत ज़्यादा दूर हूँ। बट स्टिल जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मेरे को इतना समझ में आया है कि ये जो जर्नी है, ये अगर आपको समझ में आ गई कि आपका कंपटीशन बाकियों से ज़्यादा उस परफेक्ट स्पॉट के लिए है कि मैं किसी तरीके से उस जगह पर पहुंच जाऊं। मुझे पता है शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, पर क्यों मैं अपने आप को उस चीज़ को बार बार दोहराऊं कि भाई नहीं वहाँ तो पहुंचा नहीं जा सकता, वहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता। क्यों ना मैं अपने आप को उस तरीके से कंडीशन कर दूं कि भाई मैं कोई भी अपने अंदर एक कमी नहीं छोड़ना चाहूँगा। अगर मेरा 200 नंबर का पेपर है तो मैं 200 में से 200 लाना चाहूँगा, वो जितने मर्जी है, बट मैं 100% एक्यूरेसी अचीव करना चाहता हूँ, मैं 100% स्कोर अचीव करना चाहता हूँ। दैट शुड बी माई गोल, दैट शुड बी द वे इन विच आई शुड बी लुकिंग एट। अगर मान लो कुछ भी हुआ, मान लो कुछ भी चीज़ हुई, अगर मैं थोड़ा सा भी शॉर्ट पढ़ रहा हूँ, कोई मेरे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो परफेक्शन से मेरे से ज़्यादा पास है ना, मैं परफेक्शन से दूर हो गया उसके मुकाबले। तो इफ़ यू आर कम्पीटिंग विद समवन, आपका उस दिन जो एग्ज़ाम है या फिर आपका जो स्कोर है वो आप उससे बेहतर हो गई, ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। ये एक कंपैरेटिव परफेक्शन हो गई कि आप उस टाइम पे कौन ज़्यादा परफेक्शन के पास है। बट इफ़ यू एंश्योर बाय एनी चांस कि भाई आप परफेक्शन के जितना ज़्यादा हो सके उतना पास रहो, देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट टॉपर्स माइंडसेट इन विच यू आर नॉट लुकिंग, यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड, जहाँ पर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को किसी तरीके से एक जॉब मिल जाए, मुझे किसी तरीके से एक पोस्ट मिल जाए, मैं किसी तरीके से वो जितनी भी वैकेंसीज है 2000, 3000, 5000 उसके अंदर किसी तरीके से एंटर कर जाऊँ। बिकॉज वंस यू एंटर दैट सर्कल ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स यू विल एम एट हायर थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप सेटिस्फाई तो होने नहीं वाले हो। आपको अगर मान लो किसी एक जगह पर आ गए, वहाँ आप प्रमोशंस के लिए देखोगे, वहाँ आप जितने भी अच्छे लोग हैं उनमें से और अच्छा बनने की कोशिश करोगे। तो इट इज़ अ जर्नी, जो लाइफ अपने आप में है, लाइफ इट्सेल्फ अ जर्नी ऑफ अचीविंग परफेक्शन। तो आप क्यों ना स्टार्टिंग से ही ये माइंडसेट लेकर चलो कि भाई मैं इस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरे को ये पॉइंट किसी ना किसी तरीके से अचीव करना है। सो मैंने ये चीज़ अभी रियलाइज़ करी जब मैं पढ़ रहा था, एंड आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग, एंड आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग दिस थिंग विद यू। एंड इन द मीन टाइम आपका जितने भी प्रिपरेशन चल रही है फॉर योर स्किल टेस्ट, और जितने भी बच्चे अपीयर कर रहे हैं फॉर द CGL एग्जामिनेशन, so I think this thing will definitely help you more than your hard work, more than your knowledge. I think the mindset is the thing which determines your selection, and in the selection also whether you get your desired post or not, it is also very important कि आप जो चीज़ के लिए आप एम कर रहे हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती। Suppose you are aiming for grade C MEA, but you are getting grade D in the department in which you are posting is in other states in which you do not want to go, और मतलब आप अपने घर का ही चाहते हो। So I think आपको अपना बेस्ट वर्जन अनलीश करना चाहिए, and if you go towards your studies, if you attack the exam in this manner, I think you will be able to look things in a very different way. Your perspective will broaden, and you will not limit yourself to this thing only कि somehow I just get a job and then settle and get settled in life. So I think this is a trap in which you should not let yourself trapped in, and try to better yourself every day, and analyze your mistakes by every mistake, by each and every failure you encounter. You must analyze the mistakes, you must contemplate, you must look inwards yourself, that where is that place where you are lacking, and in that way I think you will be able to correct all those things, and
will be able to achieve that warrior mindset, that 1% mindset, which is the mindset of the toppers who achieve top 100 ranks in the SSC examinations, UPSC examinations, and whatever examinations, competitive examinations conducted in this country. So I'm not just talking about SSC, I'm talking about any other exam also. So I think this video has helped you. So if you find it helpful, please do consider subscribing my YouTube channel, so that a lot of people get to see this thing, and they also learn to attack and approach competitive examination in a different way, and so that their perspective broadens, and the way in which they used to think changes, and they better themselves by improving themselves each and every day. So that is it from my side. I will meet you in another video. Till then, keep studying, keep improving yourself. Thank you so much.